as we have seen in the analogy between electrostatics and magnetism, we have the formula for torque on a electric dipole placed in a uniform electric field, given by torque is equal to electric dipole moment cross electric field. In magnetism, the equivalent of it by analogy will be torque is equal to, instead of electric dipole moment, we have magnetic dipole moment, capital M, and instead of electric field, we have magnetic field, capital B. Now, we can prove that this magnetic dipole moment, capital M, equals NIA, where N is the number of loops, I is the current through each loop, A is the area of the loop. This is what we'll try to prove now. Torque is M cross B, which is NIA cross B. So for proving that, first of all, let us understand what situation we are looking at. We are looking at a current carrying loop. Suppose current enters this end of the loop, it goes through the loop and comes out of this end. From this end current enters and from this end current leaves. Now, if we place this current carrying loop in an external magnetic field, if there is a magnetic field capital B in the region, then due to the torque acting on this loop will rotate. Due to force, if we consider due to force, if I apply force F on the book will have translational motion. If I apply torque on the book, then the book will rotate. Due to torque, there is rotational motion. If I apply torque on a marker, suppose if I apply torque on the marker will rotate. So due to torque, we have rotational motion. Similarly, if this current carrying loop is acted upon by torque, then the loop will rotate. The loop will rotate. How much is the torque acting on the loop? That is what we are trying to find in this derivation. So let us consider the wire as I have shown here. So suppose we have this rectangular loop. Suppose we have the rectangular loop which is carrying current I, which is placed in an external magnetic field B. So this is the wire which is in the form of a rectangle. It is carrying current I and it is placed in external magnetic field B. अब इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखें बुक में, तो ये ब्लैक कलर से जो मैंने यहाँ पे बनाया है दैट इज द वायर. ये ब्लैक कलर से जो मैंने बनाया है दैट इज द वायर. अब ये वायर में करंट कितना है I. वायर में करंट कितना है I. और इस लूप को हमने कहां रखा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B में. इस लूप को हमने रखा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B में. नाउ व्हाट विल हैपन, देयर विल बी टॉर्क व्हिच विल एक्ट एंड द लूप विल रोटेट. टॉर्क के कारण रोटेशनल मोशन होगा और लूप रोटेट होगा. सो उसी के लिए हम लोग एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं एंड फाइनली वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन, टॉर्क इज NIA क्रॉस B. सो लेट अस स्टार्ट विद द डेरिवेशन. सो हम लोग सोचते हैं अगर हम लोग ने ऐसा इस डायग्राम को पकड़ा तो इस ब्रांच में पहले तो हम लोग इस ब्रांच से चालू करते हैं. सपोज यहां से करंट आया और ये ब्रांच को देखो, ये वर्टिकल वाला ब्रांच जिसका ब्रेड्थ कितना है B. वर्टिकल वाला ब्रांच जिसमें ब्रेड्थ कितना है B. इसमें करंट कहां है नीचे. तो सपोज लेट मी शो द डायरेक्शन ऑफ करंट बाय होल्डिंग दिस मार्कर. मार्कर को मैंने होल्ड किया, करंट कहां है नीचे, तो मार्कर भी कहां दिखा रहा है डायरेक्शन नीचे. तो ये जो मार्कर है दैट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. एंड मैंने दूसरा मार्कर लिया ग्रीन कलर का. दिस ग्रीन मार्कर इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ग्रीन मार्कर को मैंने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा और ये ब्लैक मार्कर को मैंने कहां रखा करंट के डायरेक्शन में. इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर force on a current carrying wire, let me remind you on the board, F is I into L cross B. F is I into L cross B. अब अगर याद होगा तुम्हें जब हम लोग ने ये डेरिवेशन किया था, द लेंथ एलिमेंट, द करंट एलिमेंट, इसको हम लोग बोलते थे करंट एलिमेंट. करंट एलिमेंट L points in the direction of current.
तो एल का डायरेक्शन तो करंट का डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को एल क्रॉस बी करना है। तो एल का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन जो कि नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन राइट में है। तो एल क्रॉस बी का डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन देगा, एल क्रॉस बी का डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन देगा। एल का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में जो कि नीचे है, बी का डायरेक्शन राइट में है। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस इज इन राइट डायरेक्शन। देखो मैंने बीच में दिखाया यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बी विच इज इन राइट डायरेक्शन विच इज शोन बाय द ग्रीन मार्कर। अब एल क्रॉस बी अगर करेंगे तो फॉर दैट टेक राइट हैंड, मूव द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर मतलब एल वेक्टर विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सेकंड वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर विच इज द ग्रीन मार्कर। तो एल क्रॉस बी करते हैं हम लोग, तो मेरा फिंगर्स कहां से कहां जाएगा, एल से बी। तो लेट मी मूव द फिंगर्स फ्रॉम एल टू बी। सो द थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स यू, थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स यू। तो सिमिलरली उसके कारण हमारा फोर्स का डायरेक्शन कहां होगा, इस ब्रांच पे फोर्स का डायरेक्शन कहां होगा, तुम्हारी तरफ। अभी भी मैंने बताया था थंब वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू। तो इस ब्रांच में फोर्स कहां लग रहा है, उधर तुम्हारी तरफ। तो इसके कारण फोर्स तुम्हारी तरफ लगेगा। सिमिलरली अगर मैं यहां पे करूं, यहां पे करंट कहां जा रहा है, ऊपर। करंट कहां जा रहा है, ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड कहां है, मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी राइट में ही है। तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने रखा राइट डायरेक्शन में। फिर से मैंने एल क्रॉस बी किया राइट हैंड से, तो एल से बी, तो एल से बी वेक्टर, तो एल से बी वेक्टर हम लोग एल मतलब करंट के डायरेक्शन में जो कि इस ब्रांच के लिए ऊपर है। इस ब्रांच में करंट नीचे था, उस ब्रांच में करंट ऊपर है। तो एल इस ब्रांच में किधर है, ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी राइट डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो तो राइट में ही रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड राइट में, करंट ऊपर। तो एल क्रॉस बी करेंगे तो कहां आएगा, राइट हैंड से। मूव फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, एल टू बी। तो थंब पॉइंट्स फॉर दिस ब्रांच इन बिहाइंड डायरेक्शन, इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। इस ब्रांच पे फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इनसाइड। इस ब्रांच में फोर्स का डायरेक्शन कहां है, आउटसाइड। ये थोड़ा समझने में मुश्किल होता है। तो फॉर दैट यू नीड टू मेक दिस डायग्राम एंड थिंक एज आई हैव डन जस्ट नाउ। एल क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालो, सोचो आराम से, यू विल फाइंड द डायरेक्शन। तो एल क्रॉस बी इधर बाहर के डायरेक्शन में, एल क्रॉस बी इधर अंदर के डायरेक्शन में। तो उसके कारण क्या होगा ना, दिस लूप विल रोटेट। अभी कोई सोचेगा यहां पे क्या और नीचे क्या। तो इफ यू डू द सेम एक्सरसाइज एज अ होमवर्क, व्हाट यू विल सी इस ब्रांच में फोर्स विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, इस ब्रांच में द फोर्स विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसके कारण कोई टॉर्क नहीं लगेगा। एक ऊपर खींचना चाह रहा है, एक नीचे खींचना चाह रहा है, इसके कारण थोड़ी ये घूमेगा। अगर मैं ऊपर नीचे हाथ से खींच रहा हूं तो ये घूम थोड़ी रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं कि इस हाथ से मैं फोर्स बाहर की तरफ लगा रहा है और इस हाथ से मैं फोर्स अंदर की तरफ लगा रहा है, तो ये घूमेगा। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। इस ब्रांच में फोर्स बाहर की तरफ है, इस ब्रांच में फोर्स अंदर की तरफ है। हेंस द बुक रोटेट्स, और वी कैन से द करंट कैरिंग लूप रोटेट्स ड्यू टू टॉर्क। यहां पे फोर्स ऊपर आएगा, यहां पे फोर्स नीचे आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। यहां पे फोर्स आगे के डायरेक्शन में, यहां पे इस डायरेक्शन में, ड्यू टू दैट द बुक विल रोटेट और द लूप विल रोटेट। So that is what is the idea in this case. Okay. So let me show the same in the board. तो ये हमारे पास वो लूप है। मैंने जैसे बताया, अगर मैं इस लूप को ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ता तो what I will see इस ब्रांच में फोर्स ऊपर आएगा और इस ब्रांच में फोर्स नीचे आएगा। इस ब्रांच में फोर्स आगे की तरफ आएगा, इस ब्रांच में फोर्स पीछे की तरफ आएगा। इसके कारण रोटेशनल मोशन नहीं होगा। ये ऊपर और ये नीचे, इसके कारण ये लूप रोटेट होगा। इस ब्रांच पे जो फोर्स है वो ऊपर है, इस ब्रांच पे जो फोर्स है वो नीचे है, और ऊपर नीचे का जो फोर्सेस है उसके कारण ये लूप ऐसे रोटेट होगा। तो ये लूप जो पहले ऐसे रखा है हमने, दैट विल रोटेट लाइक दिस। लूप जो हम लोग ने ऐसे रखा है, दैट विल रोटेट लाइक दिस। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द लूप और ये है हमारा वर्टिकल पोजीशन ऑफ द लूप। दैट इज व्हाट आई हैव मेड हियर, हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द लूप and vertical position of the loop.
So let us first consider the horizontal position of the loop. हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अगर मैं देखूं तो ये फोर्स मैंने प्रूव किया अभी जस्ट तुम्हें कि फोर्स यहां पे ऊपर लग रहा है और यहां पे फोर्स नीचे लग रहा है, एफ नीचे एफ ऊपर। तो फोर्स का एक्सप्रेशन हम लोग निकालते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, आई इंटू एल क्रॉस बी। अब इस ब्रांच में से कितना करंट है, इन दिस ब्रांच द करंट इज, लेट अस मार्क दिस। अगर मैंने इसको मार्क किया बाय सम सिंबल्स पी क्यू आर एस, तो पी क्यू ब्रांच में अगर मैंने फोर्स निकाला तो पी क्यू ब्रांच में करंट कितना है, आई। पी क्यू ब्रांच का लेंथ कितना है, तो लेंथ ये तो एल है और ये लेंथ कितना है, ब्रेड्थ। दिस इज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। और ब्रेड्थ अगर बी मैंने बोला तो ये भी कितना आएगा, तो दिस विल ऑल्सो कम आउट टू बी बी। ये भी कितना आएगा, ब्रेड्थ बी। So if I consider the length of the PQ section, length of PQ section कितना है, length of PQ section is nothing but the breadth। तो इसीलिए मैंने यहां पे लेंथ के बदले यहां पे क्या लिख दिया, breadth which is small b। करंट कितना है, I। एंड फाइनली मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड कितना है, B। तो इसीलिए मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना लिख दिया, B, कैपिटल B। So from that, if we see carefully, I can rewrite the force as, force हम लोग का क्या आया था PQ सेक्शन पे, I small b कैपिटल B। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए सिर्फ क्या बोल सकते हैं, बिब। बिब याद रखना तो आसान है, फोर्स इज बी आई बी, कैपिटल B स्मॉल आई स्मॉल b। तो फोर्स हम लोग याद रखेंगे PQ सेक्शन पे, दिस इज द फोर्स ऑन द PQ सेक्शन विच इज बिब, बी आई बी। सिमिलरली अगर मैंने क्यूआर सेक्शन पे फोर्स लगाया, क्यूआर सेक्शन पे फोर्स बाहर की तरफ आएगा और एसपी सेक्शन पे फोर्स अंदर की तरफ आएगा। तो ये दोनों पे फोर्स तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों पे फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। जस्ट नाउ आई हैव शोन, यहां पे फोर्स कहां आएगा, बाहर की तरफ, वहां पे फोर्स कहां पे आएगा, अंदर की तरफ। दे विल कैंसिल, और कैंसिल हो जाएगा तो उसके कारण कोई टॉर्क नहीं लगेगा। Coming to the last section which is RS section. RS section में भी same situation है। What is the situation? We will have I into L cross B. That will be the force. And force यहाँ पे हम लोग ने प्रूव किया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ है, नीचे। और फोर्स का वैल्यू कितना होगा, I into L cross B. But length of this SR section is also breadth which is B. तो इसीलिए ILB becomes IBB। तो फोर्स वहां पे भी कितना आएगा, बिप, सेम फोर्स, बिप फोर्स। तो यहां पे फोर्स कितना आएगा, बी आई बी। और यहां पे भी फोर्स कितना आया था PQ सेक्शन में, बी आई बी, बिप इज द फोर्स। ये फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया हम लोग का PQ सेक्शन पे और RS सेक्शन पे, दोनों सेक्शन पे। नाउ इन दोनों फोर्सेस के कारण ही तो टॉर्क लगेगा। एज आई हैव सेड, अगर इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है ऊपर, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है नीचे, तो ये दोनों सेक्शन पे फोर्स की वजह से इट विद द लूप विल रोटेट। तो लूप का क्या होगा, रोटेशनल मोशन। नाउ लेट अस कम टू द एक्सप्रेशन ऑफ द टॉर्क। एक टॉर्क हम लोग को ये घुमा रहा है, लेट अस से अकॉर्डिंग टू यू दिस इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये तुम्हारे हिसाब से कैसे जा रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू यू दिस इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये वाला फोर्स जो ऊपर वाला फोर्स है, ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, और ये यहां पे फोर्स नीचे वाला है, ये भी इसको कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये फोर्स ऊपर वाला इसको क्लॉकवाइज में घुमाएगा, ये फोर्स नीचे वाला, ये एक में फोर्स नीचे है, एक में फोर्स ऊपर है, ये ऊपर वाला फोर्स क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये नीचे वाला फोर्स इस सेक्शन पे नीचे, ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो दोनों फोर्सेस इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। तो दिस फोर्स इज ट्राइंग टू मेक मूव इट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये फोर्स ऊपर लगेगा तो उसके कारण ये लूप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। ये फोर्स नीचे लगेगा, उसके कारण भी ये फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमेगा। तो बोथ ऑफ देम ट्राई टू मेक इट मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हेंस द टॉर्क ड्यू टू दिस tau 1 and the torque due to this force tau 2 both try to make it move in clockwise direction. तो इसीलिए दोनों टॉर्क ऐड हुआ, tau 1 plus tau 2. The total torque is tau 1 plus tau 2. Why do we add? Because both of them try to make it move in the
same direction, which is clockwise direction. Had one moved it in clockwise and another moved it in anti-clockwise, तो उस केस में हम subtract करते. But because both of them are trying to make it move in the same direction, we are doing addition. अब टॉर्क का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है. टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो अगर हम लोग ये लूप कंसिडर करें, इसमें फोर्स मैंने माना F और यहां पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा. लेट मी मार्क द एक्सिस ऑफ रोटेशन विथ ब्लू मार्कर. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा. एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द लाइन along which the loop will rotate. Axis of rotation is the line along which the loop will rotate, which I have shown in dotted blue mark. Dotted में मैंने मार्क किया ब्लू कलर से. Now फोर्स यहां पे लग रहा है F. फोर्स F है और इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? तो L/2. See this, ये क्या है? फोर्स F. क्योंकि मैंने प्रूव किया था थोड़ी देर पहले, फोर्स ऑन दिस सेक्शन इज टूवर्ड्स यू, फोर्स ऑन दिस सेक्शन इज इनसाइड. तो ये फोर्स अगर देखेंगे तो ये फोर्स कितना है? F टूवर्ड्स यू. और इस फोर्स का ये लाइन ऑफ फोर्स जो है, ये लाइन ऑफ फोर्स का डिस्टेंस एक्सिस से कितना है? तो वो सोचेंगे हम लोग यहां पे. मान लो मैंने इसको पकड़ा ग्रीन कलर से. दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. देखो ये क्या था? एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर मैंने क्या रख दिया? ग्रीन कलर का मार्कर. एंड फोर्स तुम्हारी तरफ था. फोर्स कहां था? तुम्हारी तरफ. फोर्स वॉज टूवर्ड्स यू. तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस ब्लैक मार्कर एंड द ग्रीन मार्कर? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ब्लैक मार्कर एंड ग्रीन मार्कर? तो इफ यू सी केयरफुली, द डिस्टेंस बिटवीन दिस ब्लैक मार्कर एंड ग्रीन मार्कर इज नथिंग बट L/2. तो यहां पे कितना डिस्टेंस है? L/2. एंड इस सेक्शन पे फोर्स किधर था? अंदर. तो अगेन इफ आई कैन आस्क यू द सेम क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन द ब्लैक मार्कर एंड दिस ग्रीन मार्कर कितना डिस्टेंस है? देखो अच्छे से लिखा है इधर, L/2. दिस इज द ब्लैक मार्कर एंड दिस इज द ग्रीन मार्कर. फोर्स है, फोर्स कहां है? अंदर. और यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है? ये ग्रीन मार्कर. तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस? इट इज L/2. तो डिस्टेंस कितना है? L/2. तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो फोर्स F इंटू डिस्टेंस कितना है? L/2. दूसरा टॉर्क मैंने बताया था अभी, दूसरे डायरेक्शन में फोर्स इनर फोर्स था और उसका डिस्टेंस भी कितना बताया था? L/2. तो F इंटू L/2 प्लस F इंटू L/2. एक F इंटू L/2 वो तुम्हारी तरफ वाले फोर्स के कारण और दूसरा F इंटू L/2 वो अंदर जाने वाले फोर्स के कारण. तो F इंटू L/2 प्लस F इंटू L/2. लेकिन F का फॉर्मूला क्या है? बिब. थोड़ी देर पहले ही मैंने समझाया था. फोर्स का फॉर्मूला क्या है? बिब. तो मैंने फोर्स F के बदले क्या रख दिया? बिब. BIB. F के बदले मैंने क्या रख दिया? BIB. By using this expression for force, which is BIB. तो टॉर्क becomes बिब L/2 प्लस बिब L/2. तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया? बिब L/2 प्लस बिब L/2. अगर L/2 प्लस L/2 करें, if I take this bib common and I do L/2 plus L/2, that will become L. L/2 plus L/2 कितना हो जाएगा? L. Now अगर हम अच्छे से देखें तो bib तो as it is रहेगा कॉमन एंड L/2 plus L/2 क्या बन गया? L. तो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बिब L. बिब L. ये हम लोग को याद रखना है. और इसको याद रखने का सिंपल तरीका क्या है? वी कैन रिमेंबर बाइबल. बाइबल से हम लोग याद रख सकते हैं. क्रिश्चियंस में बुक होता है, दैट इज होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस इज बाइबल. तो सिमिलरली टॉर्क का फॉर्मूला बाइबल के फॉर्म में आ जाएगा. BIBL. ई मत लिख के आ जाना, दैट विल बी लॉन्ग. तो BIBL. तो दिस इज द नेट टॉर्क. अब इसको सिर्फ हम लोग सिंपल रीअरेंजमेंट करेंगे. तो व्हाट इज दैट सिंपल रीअरेंजमेंट? ब्रेड्थ इनटू लेंथ. ब्रेड्थ इनटू लेंथ. इससे हम लोग को स्कूल का फॉर्मूला कौन सा याद आता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो ब्रेड्थ इनटू लेंथ हो या लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो, इट विल नथिंग बट बी व्हाट? इट विल बिकम द एरिया. इट विल बिकम द एरिया. लेंथ इनटू ब्रेड्थ और ब्रेड्थ इनटू लेंथ इज नथिंग बट एरिया. तो उससे हम लोग का टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया? बिया. बिया विल बी द न्यू फॉर्मूला. एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ को हम लोग लिख देंगे एरिया एंड विल गेट द न्यू फॉर्मूला बिया. आफ्टर बिया we will rearrange it again in the form of cross product. अब हम लोग ने क्रॉस प्रोडक्ट क्यों किया?
उसको सिंपल समझने के लिए एक सिंपल सा मेथड में बता सकता हूं। हम लोग के पास दो यहां पे वेक्टर्स है। वन वेक्टर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, इज टॉर्क अ वेक्टर? यस, टॉर्क इज अ वेक्टर। अगर ये वेक्टर है तो हम लोग के पास क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए या डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए? डॉट प्रोडक्ट गिव्स स्केलर, क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स वेक्टर। तो इसीलिए हमारे यहाँ पास वेक्टर है, मतलब यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट रहना चाहिए, इसलिए मैंने यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट डाला। अब क्रॉस प्रोडक्ट किस किस का? दो वेक्टर्स का। हु आर द टू वेक्टर क्वांटिटीज हियर? इज करंट अ वेक्टर क्वांटिटी? नो। तो इसलिए मैंने करंट को बाहर रख दिया। करंट स्केलर है तो मैंने कहां रख दिया? बाहर। अब हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज है, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने एरिया ए को यहां रखा, मैग्नेटिक फील्ड बी को यहां रखा। तो दिस इज आवर ऑलमोस्ट द फाइनल फॉर्मूला। टॉर्क इज IA क्रॉस B। दिस इज फॉर 1 टर्न। ये हम लोग का किसके लिए है? 1 टर्न, क्योंकि हम लोग ने जो लूप लिया था यहाँ पे, ये वायर का जो लूप लिया था, दैट वाज अ सिंगल टर्न वायर। एक ही सिंगल टर्न था, एक ही टर्न है, 2-4 टर्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसा 2-4 टर्न बांध के रखा। दिस इज नॉट 2, 3, 4 टर्न्स, यहाँ पे 2-3 टर्न बनाया, ऐसा नहीं है। दिस इज जस्ट 1 टर्न। 1 टर्न के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, एक सिंगल टर्न के लिए। अगर n टर्न्स रहता, 2 टर्न्स रहता तो 2 टाइम्स हो जाता, 3 टर्न्स रहता तो 3 टाइम्स हो जाता, n टर्न्स रहेगा तो n टाइम्स हो जाएगा। तो टॉर्क विल बिकम NIA क्रॉस B। This is the formula which we are trying to derive and we have derived it successfully. So torque is NIA cross B. Final step. In this case, this NIA vector we will put as new name. इसको हम लोग देखो, ये क्यों किया हम लोग ने? क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला P क्रॉस ही था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। P was इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट and E was इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके बदले व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फॉर्म फ्रॉम एनालॉजी? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के बदले मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी है, तो ये जो बचा हुआ क्वांटिटी है ये, उसको हम लोग अगर बोल दे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, इस क्वांटिटी को अगर मैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बोल दूं तो दैट विल बी एनालॉगस टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसीलिए मैंने इस क्वांटिटी को क्या बोलना शुरू किया? आई नाउ कॉल दिस क्वांटिटी NIA वेक्टर as a new name which is magnetic dipole moment NI. Magnetic dipole moment capital M, which is having the formula NIA, where N is the number of loops, I is the current through the loop, A is the area. Area vector, direction of area vector हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बोला ही है। Direction of area vector is perpendicular to the area and it points outward. ये तो हमने देखा ही है। But coming to this substitution, NIE को हम लोग क्या सब्सटीट्यूट कर दिया? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल, एंड B remains as it is, and we get our analogous formula with electrostatics. Torque is M cross B, where M denotes magnetic dipole moment, B denotes magnetic field. अब ये फॉर्मूला अगर एग्जाम में आ गया प्रूव करने के लिए, तो इसका और एक फॉर्म जो हो सकता है वो कौन सा हो सकता है? इट कैन बी डायरेक्टली अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट हम लोग को दे सकते हैं। बार मैग्नेट में हमारे पास नॉर्थ पोल रहेगा, साउथ पोल रहेगा। तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को हम लोग एग्जैक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा ही कंसीडर करेंगे, जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डायपोल लिया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में व्हाट वी हैड? प्लस Q माइनस Q, और इसके बाद हम लोग ने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड E दिखाया था राइट डायरेक्शन में, फिर इधर QE फोर्स दिखाया था, इधर QE फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में दिखाया था, उसके कारण टॉर्क किया था। सिमिलरली वी विल डू, इंस्टेड ऑफ प्लस Q we will write plus M for north pole, minus M for south pole. Instead of electric field, we will have magnetic field B, and we will have the formula MB force इधर and MB force left में। Exactly electrostatics जैसा डेरिवेशन करेंगे and we will get this formula. Torque is M cross B. ये किसके लिए होगा? बाहर मैग्नेट के लिए। ये फॉर्मूला किसके लिए होगा? बाहर मैग्नेट के लिए। और अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा, फाइंड द टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर ये वाला करना पड़ेगा। वी विल हैव टू डू दिस डेरिवेशन। इफ वी गेट द क्वेश्चन टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, डू दिस डेरिवेशन। इफ वी गेट द क्वेश्चन प्रूव टॉर्क इज M क्रॉस B, व्हाट वी विल यूज? वी विल यूज अ बार मैग्नेट एंड डू द डेरिवेशन सेम लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर ये क्वेश्चन प्रूव करने बोला तो वी विल डू लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाय टेकिंग अ बार मैग्नेट, एंड अगर ये क्वेश्चन पूछा प्रूव टॉर्क इज NIA क्रॉस B, then we will do this derivation
बाइबल से हम लोग याद करके करेंगे।